Okay, students. So last period we started a new topic of history subject, lesson number 10, Armed Revolutionary Movement. Today we are going to continue same topic, remaining points from that lesson. Am I audible properly and my screen is okay for everyone? Please tell me. Screen is okay for everyone. Not clear. Okay, 1 minute. Now you can see. Now is it clear? Now is it okay? Okay. Vedant, it is clear now. So students, okay. So students, point is that Ghadar movement already we finished at the last point of the last lecture, and we learned over there about this Ghadar means that is the one type of movement. Yes. So firstly, I would like to ask a few questions based on previous knowledge, based on previous learned part, and then I want to start that remaining points like Kakori conspiracy, then Hindustan Socialist Republican Association, work of Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev, then attack on Chittagong Armory, and work of the Kalpana Datta and Prithviraj Pawadekar. So before starting these points, I will ask you a question based on previous knowledge, based on previous learned part. Okay, so please give me answer. Can you tell me what was the old name of Abhinav Bharat? What was the old name of Abhinav Bharat, that particular organization, which was founded by Swatantravir Vinayak Damodar Savarkar? He started the secret organization. What was this organization's first name or old name? Because afterward this name changed and Abhinav Bharat formed in the year of 1904. Can you tell me about old name? Okay, it's Mitra Mela. Can you tell me year? Can you tell me year? Can you tell me year? Yes. What happened, Vedanta? Sir, I heard about. Okay. Another one question I will ask. Can you tell me uh, that Chapekar brothers killed that plague commissioner, Rand, Damodar and Balkrishna? Can you tell me what was the date and year when they killed this plague commissioner, Rand? What was the day and date? 22 June 1897. Very good, correct answer. Another one question I will ask. Can you tell me one revolutionary, the name of that revolutionary, Vanchi Iyer? He killed that one British officer. To whom he killed? To whom he killed? What was the name of that British officer?
What was the name of that British officer? Vanchi Iyer killed that one British officer. Which British officer? What is the name of that officer? Vanchi Iyer. Okay, no one is going to reply anything. So I will continue this point. Yes, correct answer. Very good. Ash is the name of that British officer. Good. Can you tell me who is the founder of, or who was the founder of Indian House or India House? Who was the founder of India House? Or who established this India House? Yes, armed revolutionary movement only. Sir, this lesson is named Armed Revolution Movement because in this chapter everyone is taking reaction against the British instead of doing satyagraha. Yes, correct. Because now people became so much alert for their freedom, for their rights, for their independence. And Gandhiji also, that told lastly, karenge ya marenge, do or die. Got the point? Okay, students. So see now there are different very good. Which students give answers. Good attention. Okay. So now I am going to continue this point. Point number next. Kakori conspiracy. Conspiracy means that is a secret plan, student. Meaning of conspiracy, which plan is secret plan. Hmm? The suppressive measures. Suppressive measures means rules. Measures means rules in मराठी नियम. मराठी मध्ये आपण त्याला नियम म्हणतो. कुछ कायदे कानून होते हैं ना हिंदी में बोलते हैं वैसे मेजर्स बोलते हैं. मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट. विच गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कायदे कानून लगाए थे जो कि नियम रखे थे जे काही नियम ठेवलेले होते कुड नॉट पुट एन एंड टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. मतलब ऐसा नहीं था कि अब उन्होंने नियम रखे उन्होंने कुछ ऐसे कायदे कानून कर दिए तो हमारी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और हमारा जो क्रांतिकारी काम चल रहा है वो अब नहीं होगा और वो मतलब नहीं चलेगा. ऐसा कुछ नहीं था. ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारे लोग तो बहुत माहिर थे और म्हणजे आपले लोक खूप हुशार होते आणि त्यांनी रिव्हॉल्युशनरी मुवमेंटचं काम सतत चालू ठेवलेलं होतं. जरी ब्रिटिशांचे काही नियम येऊ द्या मेजर्स येऊ द्या नाही ते काय येऊ द्या घाबरत नव्हते आपले इंडियन्स लोक. आफ्टर द सस्पेन्शन ऑफ सिव्हिल डिसऑबिडियन्स मुवमेंट बाय महात्मा गांधीजी many youngsters got diverted to revolutionary ways. Now, someone was asking or someone was writing in the chat box section, so this is a lesson, everyone is doing the reaction and all. Yes, you can see here when Mahatma Gandhi used that method, satyagraha or that civil disobedience movement, that time what happened, many youngster people, see, जो ऐसे यंग होते हैं ना वो नहीं सुनते मतलब जो कि ओल्ड जनरेशन जैसे की मवाळ और जहाल दो गट हमने पढ़े. 2 गटांच्या बाबत माहिती घेतली. तसे जे यंगस्टर तरुण पिढी जे असते ना वो क्या होते जो मतलब यंगस्टर होते वो क्या करते कि रिवॉल्यूशन को प्रायोरिटी देते हैं. तो मैनी यंगस्टर्स गॉट डाइवर्ट टू रिवॉल्यूशनरी वेज. मतलब एक यंगस्टर जो लोग थे जो कि यंग लोग थे वो इस मार्ग पर चलने का और चल रहे थे. कौन सा मार्ग था वो? क्रांतिकारी मार्ग था. उसको रिवॉल्यूशनरी वे बोलते हैं. और तो उसमें क्या नाम थे जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल. You can underline this name and such other revolutionaries also were there. Came together on 9th of August. You can underline this particular day and also year. 9th August 1925. They looted गवर्नमेंट ट्रेजरी. मीन शॉर्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी मतलब जिधर ट्रेजरी जो होता है जैसे कि मनी अमाउंट जो होती है वो क्या किया? लूटेड किया. लूटेड मतलब मराठी में लूट करणे मराठीमध्ये आपण म्हणतो, हिंदी में हम लुटना बोलते हैं. अंग्रेजी में भी सेम वर्ड है इसका मीनिंग भी ऐसा है लुटना म्हणजे लुटणे किंवा चोरी करणे. ऍक्च्युली ती चोरी नव्हती
ते तर काय होतं की जसं आपल्या शिवाजी महाराजांचं आपण म्हणतो की सुरतेची लूट. सुरतेची लूट या अर्थानं म्हणतो की या लोकांनी काय केलं, इस लोगों ने क्या किया था, ये लोग इधर आए थे, इधर से ही ले रहे थे जो रॉ मटेरियल, जो उनको जो चाहिए बनाने के लिए कुछ जो लगता था, जैसे कि कॉटन होता है और शुगर केन होता है शुगर बनाने के लिए, तो वो इधर से ही लेते लेते हैं और इधर ही बनाते हैं। वो ब्रिटिश लोग फैक्ट्री उस समय स्थापित करते थे। तो ये ट्रेजरी जो इन्होंने बनाए है वो किसी के कारण बनाए हैं, हमारे इंडियन लोगों के ही कारण बनाए हैं। हमारे लोगों ने ही उन्हें मदद और हेल्प की है। अगर हमारे लोगों ने मदद नहीं की होती तो वो ये उनके डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या किया, हमारे लोगों ने ट्रेजरी की लूट की। उनके जो कुछ अमाउंट थी, मनी थी, जो कुछ जो कुछ ट्रेजरी थी वो मतलब लूट की गई। That was carried in the train near Kakori railway station. Why it is called Kakori conspiracy? Because it is happened in the place of Kakori, and there is a railway station in Uttar Pradesh. This is known as Kakori conspiracy. By taking immediate action, the government arrested the revolutionaries and put them into prison. जिन जिन क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया था, ये ये जो लूट की थी ना, उनको ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट किया, जेल में भेजा। ज्या ज्या लोकांनी या लुटीमध्ये भाग घेतलेला होता, जे काकोरी कन्स्पायरसी केलेली होती की काकोरीमध्ये जे रेल्वे स्टेशन आहे तिथे जे रेल्वे थांबलेले होते त्यामध्ये असलेले काही जे सरकारी काय मालमत्ता जी होती, म्हणजे काही पैसे वगैरे होते, ते ज्यांनी लुटलेले आहेत अशा लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे। ब्रिटिशांनी त्या काळामध्ये अटक केली त्यांना। दे वर पुट अंडर ट्रायल, त्यांना म्हणजे जेलमध्ये ठेवण्यात आलं, त्यांना कोर्टमध्ये नेण्यात आलं। अंडर ट्रायल मीन्स व्हाट, दॅट इज द केस गोइंग ऑन इन कोर्ट। जैसे कि नाम लिखा इधर, अशफ कुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, दीज आर द नेम्स और दिस वर हैंग। इनको क्या हो गया, हैंगिंग पनिशमेंट मिली। इनको तो हैंगिंग पनिशमेंट मिली। चंद्रशेखर आजाद जो है वो भाग गए, वो एस्केप हो गए, मतलब वो भाग गए उधर से, ते पळून गेले चंद्रशेखर आझाद। बाकीच्यांना काही जणांना हँगिंग पनिशमेंट मिळालेली आहे। आता पुढे जर आपण बघितलं, ह्या तिघांची नावं खूप फेमस आहेत, मीन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रिवॉल्यूशनरी पीपल वी कैन से। हम बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारक इनको बोलेंगे। जैसे कि भगत सिंह का आप पिक्चर इधर देख रहे हैं, जैसे कि राजगुरु का पिक्चर आप इधर देख रहे हैं, जैसे कि सुखदेव का भी आप पिक्चर इधर देख रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उनको फांसी के फंदे पर लगाया था ना और ले जा रहे थे ना, तो उनको कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि मन में एक प्राइड था, मन में एक गर्व था, मन में एक अभिमान था। किसके लिए अभिमान था? भारत माता के लिए। क्या बोल रहे थे लोग तीनों भी? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे नारे दे रहे थे, अशा घोषणा देत होते। ही होती राष्ट्रभक्ती, हे होतं राष्ट्राबद्दलचं प्रेम। दिस मीन्स वी कैन से हियर इन हिंदी ऑल्सो, ये था राष्ट्र के लिए उनका प्रेम। मतलब वो डर नहीं रहे थे मरने के लिए भी, और इनकलाब जिंदाबाद ऐसे नारे लगाकर वो मरने जा रहे थे। देखो कैसा था राष्ट्रभक्ति भगत सिंह। हम देखेंगे ये क्या है, ये एक एसोसिएशन थी। इस एसोसिएशन में यंग मैन थे। The young men influenced by socialist ideas decided to set up a nationwide revolutionary organization. Young men मतलब जो कि तरुण लोग होते, जो कि यंगस्टर थे, उनको एक प्रभाव हो गया, उन पर एक प्रभाव हो गया। कौन सा प्रभाव हो गया कि रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एक स्थापित करना जरूरी है। प्रोमिनेंट अमंग देम, तो इसमें कौन कौन प्रोमिनेंट थे, इसमें कौन कौन ऐसे फोरमोस्ट थे। प्रोमिनेंट मतलब जो फेमस थे, कौन कौन थे? जैसे कि चंद्रशेखर आजाद थे, अभी अभी मैंने बताया, जो भाग गए। भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, मतलब वो ब्रिटिशों के हाथ नहीं लगे। तो इन चारों ने मिलकर क्या किया, ऐसे रिवॉल्यूशनरीज इकट्ठा किए। ऑल दीज रिवॉल्यूशनरीज वेर सेक्युलर इन देयर थॉट्स। ये जो रिवॉल्यूशनरी थे ना, ये सेक्युलर थे। सेक्युलर मतलब क्या? सेक्युलर का मतलब एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष होता है। मतलब कोई भी धर्म उच्च नहीं, कोई भी धर्म नीचे नहीं, इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। मगर इधर सेक्युलर का मीनिंग क्या लेना है कि इधर इनका सभी का मत और सभी का ओपिनियन सेम था। मतलब उनके मत में कोई भी ऐसे डिफरेंसेस नहीं थे, ओके, भेदभाव नहीं थे। इन देयर थॉट्स, इन देयर ऑफ 1928, 1928 में क्या हो गया, 1928 साली काय झालं, इन द मीटिंग हेल्ड एट द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड,
जे दिल्लीमध्ये ग्राउंड आहे फिरोजशाह कोटला या नावानं, तिथे हे यंग लोक यांनी एक ऑर्गनायझेशन चालू केली. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक ऐसी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन म्हणजे संस्था जो है वो चालू की. उस एसोसिएशन का नाम था, उस ग्रुप का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. हिंदुस्तान मतलब इंडिया, सोशलिस्ट मतलब सोसाइटीज, रिपब्लिकन मतलब जो कि पब्लिक के लिए है, जो कि लोग के लिए है, एंड एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल or group of that particular members. So this organization was started in the place of Delhi by that young man Firozshah Kotla. Ground name please underline it everyone. Very important thing is that. Now you see, maybe exam में क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न येऊ शकतो परीक्षेला की यांचं नेमकं ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं, यांचा नेमका उद्देश काय होता ते ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्याचा. बघा मराठी मीडियमची सुद्धा मुलं आपल्याकडे आहेत काही, काहींना मराठीमध्ये प्रॉब्लेम असेल तर हिंदीमध्ये पण सांगतोय की असा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला येऊ शकतो बघा मराठीतून की त्यांचा नेमकं ह्याच्या मागे उद्देश काय होता, ही जी ऑर्गनायझेशन आहे ती स्थापन करण्यामागे नेमका त्यांचा हेतू काय होता. द ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन. क्या क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था, ब्रिटिश लोग जो हमें तकलीफ दे रहे थे, उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए ये और छुटकारा पाना ये इस ऑर्गनायझेशन का काम था. जसे की मराठीमध्ये आपण काय म्हणू शकतो की ब्रिटिश लोक करत असणारी पिळवणूक, ब्रिटिश लोकांचा होत असलेला त्रास आपल्या भारतीयांना, तो त्रास थांबवणं आणि आपल्या भारताला, आपल्या इंडियाला त्या ठिकाणी त्यांच्या त्रासापासून मुक्त करणं, फ्री करणं, हा या ऑर्गनायझेशनचा एक मुख्य हेतू होता. इट ऑल्सो वॉन्टेड टू ओव्हरथ्रो अनजस्ट सोशियो इकॉनॉमिक सिस्टम विच एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स अँड वर्कर्स. which unjust socio and economic systems British brought here in our India and given trouble to our farmers and workers, that system also overthrow में त्या टाकून दिल्या पाहिजे, सोडून दिल्या पाहिजे, मतलब वो रिमूव करना पड़ेगा, वो निकालने पड़ेगी जो कि अनजस्ट पॉलिसीज है हमारे फार्मर्स के बारे में, हमारे वर्कर्स के बारे में. भगत सिंह gave importance to the creation of society based on social justice and equality. ये जो तीन आदमी थे ना, ये जो तीन क्रांतिकारी थे ना, ये जो तीन रिवॉल्यूशनरी थे ना, ये तीन रिवॉल्यूशनरी में भगत सिंह जो थे, भगत सिंह का सोच क्या था, भगत सिंह की सोच क्या थी, उन्होंने किसके लिए महत्व दिया था. वो बोल रहे थे हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए, हमें ऐसे इंडिया चाहिए, उस इंडिया में जस्टिस होना जरूरी है, उस भारत देश में इक्वेलिटी होना जरूरी है. हमें ऐसी सोसायटी चाहिए जिधर क्या होगा, जस्टिस होगा. असं एक आपल्याला समाज पाहिजे की ज्या समाजामध्ये काय असेल, न्याय असेल, ज्या समाजामध्ये काय असेल, समानता असेल, कोणी उच्च नसेल, कोणी नीच नसेल, उच्च आणि नीचाचे भेदभाव नसतील, असा समाज आपल्याला तयार करायचा आहे. हे भगत सिंगांचं ओपिनियन होतं. हिंदी में हम क्या बोलेंगे, भगत सिंह का क्या ओपिनियन था. कोई भी उच्च नहीं होता, कोई भी नीच नहीं होता, सब समान नागरिक होते. जस्टिस जो है वो सबको मिलना जरूरी है, न्याय का तो सबको मिलना जरूरी है, समानता होनी चाहिए लोगों में, ये ओपिनियन भगत सिंह का था. द वर्क ऑफ गैदरिंग आर्म्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम was entrusted to a separate wing of organization. अभी जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई इस यंग लोगों के कारण, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें एक सब डिपार्टमेंट था. सब डिपार्टमेंट का नाम क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऐसा नाम था. देखो स्टूडेंट्स फर्क है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, आर्मी जो शब्द है वो सिर्फ बदला है इधर. फक्त आर्मी शब्दामध्ये बघा बदल आहे की ज्याच्यामध्ये काय केलंय की त्याच्यामध्ये एक वेगळी अशी त्याच्यामध्ये पार्ट होता द वर्क ऑफ गॅदरिंग आर्म, म्हणजे आर्म गोळा करणं. आर्म मीन्स वॉट, शस्त्रास्त्र जे असतात, मराठी में शस्त्रास्त्र म्हणूया, हिंदी में हम जो बोलेंगे कि शस्त्र जो लगते हैं युद्ध के लिए, वो शस्त्र क्या करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, ये काम था. एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स वाज एंट्रस्टेड टू द सेपरेट विंग. इस पर्टिकुलर विंग का मतलब, विंग मतलब ऐसा पंचे के जो पर होते उसको विंग नहीं बोलने का, इधर विंग का मतलब डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट, और एक सब पार्ट होता है, जो कि पार्ट होता है ना उसको विंग बोलते हैं. दिस विंग वाज कॉल्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, एंड हु वाज चीफ ऑफ दिस आर्मी, दैट इज द पर्सन नेम चंद्रशेखर आजाद, और द चीफ ऑफ दिस विंग. यस, now you can see these three pictures also. Yes, upside one, downside two given. So here members of this organization carried out many revolutionary work or activities
Bhagat Singh, Rajguru fired bullets and killed their officer named Saunders. Please underline this, student. मतलब भगत सिंग आणि राजगुरूंनी काय केलं, भगत सिंग आणि राजगुरू ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स करके है ना, सॉन्डर्स नाम का है ना, उसको क्या किया, किल किया। और क्या हो गए, इन ऑर्डर टू हैव द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। क्योंकि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनके ध्यान में था कि हमारे लाला लाजपत राय जैसे महान नेता को मारने का काम ये ब्रिटिश लोगों ने किया है, तो इनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो सॉन्डर्स जो था वो बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इधर महत्वपूर्ण मतलब किसके बारे में बोल सकते हैं हम कि वो उस समय था जिस समय हमारे लाला लाजपत राय डेड हो गए लाठी चार्ज में। इसका बदला लेने के कारण, त्या घटनेचा बदला घ्यायचा म्हणून आपल्या लोकांनी म्हणजे राजगुरू आणि भगत सिंग यांनी त्या ब्रिटिश ऑफिसरला ठार केले। बघा कसे लक्षात ठेवून रिवेंज घेतलेले आहे त्यांनी। दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट। The government had introduced two bills in the Central Legislative Assembly curtailing civil rights. To protest it, Bhagat Singh and Batukeshwar Datta threw bombs in the Central Legislative Assembly. गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या, जो कि लोकसभा राज्यसभा जो ऑफिस होता है, उसको सेंट्रल लेवल पर जो ऑफिस होते हैं उसको लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, और स्टेट लेवल पर जो होते हैं उसको विधान सभा और विधान परिषद ऐसे बोलते हैं। और ब्रिटिश के टाइम में क्या था, सेंट्रल ऑफिस था, तो जो कुछ भी राइट वो बनाते थे, जो कुछ भी सिविल राइट बना रहे थे, वो राइट कैसे थे, कर्टेलिंग थे। कर्टेलिंग मतलब क्या कि जो राइट हमारे फायदे के नहीं थे, तो हमारे राइट पर दबाव तंत्र वो यूज कर रहे थे। म्हणजे आपल्याला अधिकार काहीच नव्हते, नुसते म्हणायला अधिकार होते आणि त्या ठिकाणी आपल्या अधिकारावरती काय त्यांचा दबाव होता, कर्टेलिंग सिव्हिल राईट। टू प्रोटेस्ट इट, मग आपल्या लोकांनी जरा प्रोटेस्ट केलं, अपोज केलं, पाठिंबा दिला नाही। भगत सिंग आणि बटुकेश्वर दत्त थ्रू दॅट बॉम्ब्स, त्यांनी तर काय केलं, बटुकेश्वर यांनी आणि भगत सिंग या दोघांनी त्यांनी बॉम्ब टाकले त्या जे लोकसभा राज्यसभेचे जे ऑफिस आहे त्या ऑफिसवरती बॉम्ब टाकलेले आहेत। The British government immediately raided the centers of the Hindustan Socialist Republican Army because they were searching that. Means which are the revolutionaries here. Through it, the police also obtained clues related to the killing of Saunders. Means उनके ध्यान में आया कि सॉन्डर्स का भी मृत्यु क्यों हुआ है, सॉन्डर्स को भी किसने किल किया, किसने मार दिया। वो ऐसा ट्राई कर रहे थे, मतलब ढूंढने का। द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग द रिवॉल्यूशनरी। सो गवर्नमेंट ने काम चालू किया, क्या काम चालू किया कि जो जो रिवॉल्यूशन करने वाले लोग थे ना, उनको अरेस्ट करने का, वो त्यांना अटक करायचे। दे ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन। सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजाज्ञा जो होती है त्याला तोडणं म्हणजे सेडिशन त्याला म्हणतात इंग्लिश मधून। मराठीमधून त्याला आपण असं म्हणतो की राजाचा हुकूम तोडणे किंवा मोडणे, राजाचा हुकूम मोडणे, मोडणे बरोबर होणार आहे। आणि हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि राजा आज्ञा का अवमान करना। राजाज्ञा जर पाळली नाही तर राजा आपल्याला शिक्षा देतो, त्याच पद्धतीनं सेडिशन म्हणजे सरकार जर ऐकलं नाही सरकार आपल्याला शिक्षा देणार आहे। दे वर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन। ऑन 23 मार्च 1931 भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना पनिशमेंट दिलेली आहे ना, हँगिंग केलेलं आहे इन द लाहोर जेल। बट टिल द एंड ऑफ चंद्रशेखर आझाद डिड नॉट फॉल इन टू द हँड्स ऑफ द पोलीस। तरी पण बघा अजूनही चंद्रशेखर आझाद त्यांच्या हातात लागले नव्हते पोलिसांच्या, म्हणजे किती शूरवीर धाडचे असतील। लेटर ही डायड इन एनकाउंटर, बट ही डायड ओव्हर देयर इन द एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब जो पुलिस लोग ऐसा फायरिंग करते हैं ना विदाउट थिंकिंग एंड ऑल। सो व्हेन देयर एनी इंसिडेंट इज हैपनिंग, लाइक द सिचुएशन इज कमिंग, जब ऐसा करना पड़ता है उनको, जैसे कि जनरल डायर ने किया था, वो गलत काम था एक्चुअली। ब्रिटिश लोग जो करते वो गलत काम कर रहे थे, तो इधर भी एक काउंटर हो गया, एनकाउंटर हो गया। तो उस समय हमारे जो चंद्रशेखर आजाद थे वो भी क्या हो गए, मर गए, डाइड हो गए। ओके, और हम ऐसा बोलेंगे सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने। एट अल्फ्रेड पार्क, विच पार्क, दैट इज अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, इन द प्लेस ऑफ इलाहाबाद। ओके, हैव यू गॉट द पॉइंट्स फ्रॉम दिस मच? इनकलाब जिंदाबाद मतलब हमारा इंडिया अमर रहे, हमारा भारत देश अमर रहे। यस, एनी अदर डाउट?
हाँ, in middle, no, in between. Yes. What happened? Voice is breaking. Now is it okay for everyone? Are you understanding the chapter what I'm teaching properly? Yes. Can I ask few questions based on that? How much I taught that much based on that? Okay. Who was the chief? Who was the chief person of Hindustan Socialist Republican Army? Chandrasekhar Azad. Correct answer. Very good. As I told you about Kakori conspiracy, can you tell me when this Kakori conspiracy happened? On which date and which year? Kakori conspiracy. When this Kakori conspiracy happened? 9th August 1925. Very good. Correct answer. My voice is okay? Yes. If any problem, you can ask everyone. 1925. Yes, correct. So, student, next point is now that is you can see this picture. This is the person. Name of this person, Surya Sen. You can see this lady's picture. She is Pritilata Vaddedar and she is Kalpana Datta, not Dutta. Pronunciation is Datta. Spelling is different. Okay. So first we will learn about Surya Sen. See, name also of Surya Sen. He was the main person. He was the chief person of revolutionary group at चित्तगोंग. चित्तगोंग का मतलब जो होता है ना, मराठी में चितगांव जैसा असतं, हिंदी में भी हम चितगांव ऐसा बोलते हैं, मगर अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं ना तो ऐसा लिखते हैं, डिफरेंट टाइप का स्पेलिंग थोड़ा सा होता है. सूर्यसेन कौन थे? ये तो मेन थे, ये तो मेन व्यक्ति थे, मेन पर्सन थे, हे मुख्य होते, चीफ होते कोणत्या रिव्होल्युशनरी ग्रुपचे? तर जो ग्रुप चिटगांग मध्ये होता बेंगॉल मध्ये. ही हैड गैदर्ड अराउंड हिम रिवॉल्यूशनरी. उन्होंने क्या किए? बहुत सारे क्रांतिकारक लोगों को ऐसा इकट्ठा किया. कौन कौन से क्रांतिकारकों ने उन्होंने इकट्ठा किया? जैसे कि अनंत सिंह थे, गणेश घोष थे, कल्पना दत्ता लेडीज भी थे, प्रीति दत्ता वड्डेदार भी थी. विद देयर असिस्टेंस सूर्य सेन ड्रीव अप वन प्लान. विच प्लान? उन्होंने एक योजना तयार की. त्याने एक योजना तयार केली. काहीतरी करायचं ठरवलं. कशा पद्धतीने आपण ब्रिटिशांना इकडून हकलवलं पाहिजे, ब्रिटिशांना इकडून त्यांच्या राष्ट्रामध्ये जाण्याची इच्छा झाली पाहिजे. त्यासाठी क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश लोगों को ऐसी सोचना पड़ेगा कि हमें हमारे इंग्लैंड में जाना जरूरी है, ऐसा उनको सोचना पड़ेगा. तो इसलिए क्या करना है? तो सूर्यसेन ने क्या किया? एक प्लान ऐसा तैयार किया टू अटैक आर्मरी एट द चितगोंग. एज पर द मतलब चितगोंग में जो आर्मरी है, चितगोंग में जो कुछ शस्त्र है, शस्त्र साटा है, उस पर आक्रमण करने का सोच रहा था सूर्यसेन उस असिस्टेंस लोगों के साथ. एज पर द प्लान, इस प्लान के मतलब प्लान के मुताबिक 18 अप्रैल 1930 में क्या हो गया? रिवोल्यूशनरी जो है उन्होंने सीज किया आर्म्स को फ्रॉम द टू आर्मरीज इन चितगोंग. चितगोंग में जो टू डिपार्टमेंट है, टू जो आर्मरी प्लेसेस है, फ्रॉम देयर मतलब उस प्लेसेस से उन्होंने क्या किया? हमारे लोगों ने वो आर्म पावर और दैट विच आर्म थिंग्स आर देयर, दे स्टार्टेड टू टेक फ्रॉम दैट. उन्होंने चालू किया लेने के लिए उधर से ही. तो अटैक किया उस, बेसिकली लूटेड भी बोल सकते हैं हम.
The telephone and telegraph lines were broken. Why they did like this? म्हणजे काय म्हणायचं की त्यांनी ज्या टेलिफोनच्या वायरी होत्या किंवा टेलिग्राफच्या ज्या लाईन होत्या त्याच्या वायरी ज्या आहेत त्या तोडून टाकल्या. Why they did like this? Why they broke down the wires of the telephone and telegraph? Because they wanted to make that something disturbance in the administration of the British. They should not talk with each other. They must get some troubles, and because of that, our people were behaving like this, and they wanted to paralyze the British government, paralyze the communication system. Paralyze का मतलब इधर क्या होता है कि उनको कुछ ऐसी दिक्कत देना, उनको कुछ नुकसान पहुंचाना ब्रिटिश लोगों को, वो हमारे लोग सोच रहे थे और ऐसा कर रहे थे. The telephone and telegraph lines were broken and they succeeded in paralyzing the communication system. इसके वजह से क्या हुआ, उनकी जो पैरालाइजिंग हो गई सिस्टम, वो कौन सी सिस्टम हो गई थी पैरालाइज? कम्युनिकेशन सिस्टम. मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे इधर से उधर, क्योंकि हमारे लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम के जो वायर है उसे क्या किया था, कट किया था. आफ्टर दैट दे गिव अ थ्रिलिंग फाइट टू द ब्रिटिश आर्मी. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, थ्रिलिंग फाइटिंग, मतलब जो थ्रिलिंग का मतलब मराठी में चित्तथरारक ऐसा भी होता है, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि हिंदी में भी हम चित्तथरारक बोल सकते हैं कि जो कि बहुत ग्रेट ऐसी फाइटिंग थी वो उन्होंने दी ब्रिटिशों के अपोजिट में. ऑन द डे ऑफ 16 फरवरी 1933, क्या हो गया 16 फरवरी 1933, मतलब 1933 में क्या हो गया, 1933 में क्या हो गया, सूर्य सेन एंड some of his associates, some of his friends or their supporters were captured by the police. पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और कैप्चर किया. सूर्य सेन एंड हिज 12 associates टोटली. हाउ मेनी associates were there? 12. सूर्य सेन अकेला नहीं था, उसके साथ कौन कौन थे? 12 associates थे. म्हणजे सूर्य सेन एकटे नव्हते, त्यांच्यासोबत 12 असे त्यांचे सहकारी होते, असोसिएट्स होते. वर गिवन डेथ पनिशमेंट. उनको कौन सी पनिशमेंट मिल गई? डायरेक्ट डेथ पनिशमेंट मिल गई. कल्पना दत्ता वॉज सेंटेन्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. हे जो लेडी दिख रही है ना पिक्चर में, हे ज्या लेडी दिसतात ना चित्रामध्ये, त्यांना कोणती पनिशमेंट मिळाली आहे? की त्यांना लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या? जेल अप टिल डेथ. मतलब जेल में ही रखना, कब तक? जब तक मृत्यु नहीं आता तब तक. कल्पना दत्ता को ऐसी पनिशमेंट मिल गई. प्रीतिलता वड्डेदार ने क्या किया? उन्होंने खुद को ही किल किया. प्रीतिलता वड्डेदार किल्ड हरसेल्फ विदाउट फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस. मतलब वो सोच रही थी कि क्यों ऐसा उनके हाथ में पड़ना. दैट इज बेटर टू डाई ओन सेल्फ. मतलब क्या कि उससे अच्छा है कि मैं मेरा खुद ही मरती हूँ. तो ऐसा सोचकर उसने उसका जीवन जो है वो नष्ट कर दिया और फिनिश कर दिया, ऐसा नहीं हम बोल सकते इधर. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो इस देश के लिए, इस भारत देश के लिए किया है. ड्यू टू द अपराइजिंग इन चित्तगोंग, द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट गेन पेस. पेस मीन स्पीड. ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रही थी, इसके वजह से क्या हो गया, मतलब इस चित्तगोंग में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो गई है ना, इसलिए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को स्पीड मिल गया. जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था ऑलरेडी हमारे देश में, उसको बहुत ज्यादा स्पीड क्यों मिल गया? बिकॉज ऑफ दिस चित्तगोंग पर्टिकुलर मूवमेंट. जो चित्तगोंग में मूवमेंट
हो गई थी इसकी वजह से। Am I audible properly, students? Am I audible clearly and properly? Yes. Okay. तो इधर क्या हो गया देखो, स्पेस मिल गया मतलब स्पीड मिल गया, क्योंकि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे ना, वो भी ऐसे मूवमेंट कर रहे थे, वो भी ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहे थे। ओके, जैसे कि शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये जो दो नाम है ना, ये टू स्कूल गर्ल्स थी, मतलब स्कूल में जाने वाली, पाठशाला में जाने वाली लड़कियां थी। शाळेमध्ये जाणारे मुली होते, आणि काय केलेलं पहा, एका डिस्ट्रिक्ट जजला मारून टाकलेलं। डिस्ट्रिक्ट जज मतलब ब्रिटिश ओनली, ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड ब्रिटिश, द ब्रिटिश पर्सन। उन्होंने ब्रिटिश जज को ही मार दिया, किल किया। वेयर एज अ यंग गर्ल बीना दास शॉट डेड द गवर्नर ड्यूरिंग द कन्वोकेशन सेरेमनी। कन्वोकेशन प्रोग्राम आपको मालूम है कि स्टूडेंट, कन्वोकेशन मतलब जब सर्टिफिकेट मिलता है ना हमें, जैसे कि पहले क्या होता था कि शुरुआत में तो ऐसा होता था कि 7th स्टैंडर्ड पर ही शिक्षक और मतलब जो स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो बनते थे। उसके बाद क्या हो गया, 11th स्टैंडर्ड को ही मैट्रिक की एग्जाम थी। तो ऐसे जो एग्जाम थे ना, मेन मेन अभी 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की मेन एग्जाम होती है, एसएससी और एचएससी। और जैसे कि कॉलेज में पदवी परीक्षा होती है, जैसे कि हमारे में 15 म्हणतो आपण मराठीमध्ये। तो उसके बाद जो पदवी का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो सर्टिफिकेट का प्रोग्राम जो होता है ना, उसको कन्वोकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब कन्वोकेशन मतलब क्या, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। यस, इन शॉर्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। जब प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र जब देते हैं कॉलेज में, तो उसको हम कन्वोकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो कन्वोकेशन प्रोग्राम हो रहा था, किस यूनिवर्सिटी का हो रहा था, कोलकाता यूनिवर्सिटी का ये सेरेमनी हो रहा था। और उस समय क्या किया, ये जो यंग गर्ल है बीना दास करके, उसने क्या किया, ये गवर्नर को ही मार डाला इस प्रोग्राम के दौरान। तो आपको मतलब ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, मतलब अंडरलाइन करना जरूरी है। और ये इंसिडेंट है वो भी क्रोनोलॉजिकली आपको ध्यान में रखना पडेगा। मराठी में मध्ये काय होणार आहे की बीना दास हिने काय केलेलं आहे, एक मुलगी आहे, अगदी छोटी मुलगी, यंग गर्ल, म्हणजे छोटी म्हणजे एकदम छोटी पण नाही, पण स्कूलमध्ये जाणार आहे, की तिने सुद्धा काय केलेलं आहे की त्या गव्हर्नरला मारून टाकलेलं आहे। सो हा पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवणं जरुरीचं आहे। देन आफ्टर दॅट, सरदार उधम सिंग। See, some students are not understanding Hindi, not understanding Marathi, or English. You can say, tell me that which language is proper. You can ask me. Hmm? Then another one incident happened. There is a Sardar Udham Singh. Udham Singh. See the name of that person. Please underline the name of that person. Very important name. You can get the point with the surname of that person. उसके सरनेम से पता चलता है ये जो व्यक्ति था और ये जो रिवॉल्यूशनरी थे, वो रिवॉल्यूशनरी पंजाब की ही होगी। यस, आपको दिन याद आया होगा, मैंने पढ़ाया था उस एक बैसाखी जो फेस्टिवल था पंजाब में, उस समय अमृतसर में जो मीटिंग हो रहा था, जब ऐसे लोग इकट्ठा बैठे थे, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उसका नाम था जनरल डायर। क्या किया था रे उसने, कौन बताएगा मुझे? काय केलं होतं नेमकं जनरल डायरनं, कोण सांगेल का मला? चैट बॉक्स मध्ये तुम्ही लिहू शकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। No, I am not speaking. हाँ, Rowlatex is there, but that meeting was going on. No, but General Dyer what did? जनरल डायर ने क्या किया था, माझा प्रश्न। मेरा कोई सवाल क्या है कि जनरल डायर ने क्या किया था उस समय जब हमारे लोग इकट्ठा हो गए थे उधर उस मीटिंग के लिए? यस, करेक्ट। ही फायर
on their people. Very good, very good. Hmm? सो अभी क्या टाइम था, अभी बदला लेने का था, अभी तो रिवेंज लेना पड़ेगा। तो सरदार उधम सिंह जो थे ना, वो पंजाब के थे। उन्होंने क्या किया, डायर को ही किल किया, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल था ना, उसने किया था ये सब कुछ। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियनवाला बाग मैस्कर, मैस्कर मतलब जो किलिंग होता है ना, उसको मैस्कर बोलते हैं, कत्ल मराठी में। हिंदी में भी कत्ल ही बोलेंगे। मैंने बताया था इससे पहले। लंदन में किल किया, लंदन में इन 1940, 1940 में, 1940 सर। अंडरलाइन करो मतलब इस जो नाम है, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में क्या जरूरी होता है स्टूडेंट? साल जरूरी होता है, वर्ष महत्वाचं असतं, नेम जरूरी होता है, नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिस्ट्री में है ये जो बातें हैं, जैसे कि सिक्वेंस बोलते हैं हम, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया मतलब हमारे राष्ट्र का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब स्वतंत्रता मिळवणे के लिए हमारे लोग झगड़ रहे। आपले लोक कशासाठी एवढं संघर्ष करत होते? स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी। महात्मा गांधीजींनी त्या ठिकाणी सत्याग्रह आंदोलन चालू केले, असहकार आंदोलन चालू केले, वेगवेगळे आंदोलन चालू केली। खेडा सत्याग्रह झाला, चंपारण सत्याग्रह झाला, बिहारचे बरेच सत्याग्रह झाले। देन ऑल्सो ब्रिटिश पीपल वे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग टू गिव द फ्रीडम ऑफ टू इंडियंस। इतना होने के कारण होने पर भी इस ब्रिटिश लोगों को कोई भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या देना जरूरी है, हमें इस लोगों को स्वतंत्रता देना जरूरी है। तो इधर क्या हो गया देखो आगे जाकर। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मेड एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। रियली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के कारण बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन और बहुत महत्वपूर्ण एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया हमारे भारत देश के स्वतंत्रता के लिए। दिस रिवोल्यूशनरीज डिस्प्लेड डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन while फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हमारे लोगों में क्या निर्माण हो गया था? डेयरिंग आ गया था, एक लड़ने के लिए उत्साह आ गया था, निश्चय आया था, डिटर्मिनेशन था, while fighting against the British rule. The love for the nation and attitude of sacrifice, नेशन के बारे में लव, राष्ट्र के प्रति लव जो होता है, राष्ट्रभक्ति बोलते हैं हम उसे, पैट्रियोटिज्म भी बोलते हैं हम उसे अंग्रेजी में। वो देशभक्ति निर्माण हो गई, देशभक्ति का सोच और विचार लोगों में आ गया, लोग प्रेरित होने लगे, लोग में डिटर्मिनेशन आया, लोगों में डिटर्मिनेशन आया, दृढ़ निश्चय आया। मतलब जो डिटर्मिनेशन था, डिटर्मिनेशन मतलब क्या, कुछ मिलाने की जो इच्छा होती है उसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं, दृढ़ निश्चय बोलते हैं। वो डिटर्मिनेशन इस लोग हमारे भारतीय लोगों में क्यों आया? क्योंकि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के कारण। See, many of the people died for the Swaraj. Many of the people died for our independence. Young that school children also. Example of that Babu Geno I told you. After that I told that Pritilata Vaddedar and Kalpana Datta also. And now only I told that this one convocation program also about this one girl also, Dina Das, also Shanti Ghosh, Suniti Chaudhary. Very important. The love for the nation and attitude for of sacrifice. Sacrifice करना मतलब क्या करना? बलिदान करना, देश के लिए बलिदान करना। और जस्ट इनकम्पेरेबल मतलब हम तुलना ही नहीं कर सकते किसके साथ। ये इनकम्पेरेबल था, कंपेयर नहीं कर सकते। देयर सैक्रिफाइस प्रूव टू बी इंस्पिरेशन टू द इंडियंस। और ये सैक्रिफाइस का मतलब, ये बलिदान का मतलब क्या हो गया? हमारे भारतीय लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक इंस्पिरेशन के रूप में आ गया। So the people also fire. हाँ, he fire on that people, that is correct. But so the people also fire to the nearest police station. That is another incident. That is Chauri Chaura's incident. That is another moment. Okay. General Dyer fire, that is the correct. Yes.
Yes, but it is allowed or not? नो नो चालतंय घेतलं तर असं विचारतो मी. चलेगा क्या? अलाउड और नॉट अलाउड? रीडिंग. आई एम स्पीकिंग अबाउट रीडिंग. रीडिंग के बारे में बोल रहा हूँ. Okay, then no problem. You can take. Yes. So one by one, Ayush Mehta. But the questions I actually I want to ask, it's okay. Just we'll take one passage. First passage. Yes, firstly Ayush Mehta, then Prarthana, then Kadambari, Nandini, Vedant, and Vishal. Yes. Hello. धडा 10वा. हॅलो. हाँ yes. धडा 10वा. सशस्त्र क्रांती आणि सशस्त्र क्रांती चळवळ. ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध भारतात विविध मार्गाची आंदोलन झाली. त्यानंतर एक मार्ग सशस्त्र क्रांतीचा होता. त्यांची ओळख आपण या पाठात करून घेणार आहोत. सन 1857 पूर्वी इंग्रजी सत्तेविरुद्ध झालेला उठाव आणि 1857च्या लढ्यात स्वतंत्र लढा याचा अभ्यास आपण केला आहे. त्यानंतर काळात रामसिंह कुका यांची पंजाबमध्ये सरकारविरुद्ध उठावचे आयोजन केले आहे. वासुदेव Okay. बळवंत फडके. Okay. Ayush, very good. One pass, two passages over. Okay, very good. Next one, Prarthana. Vasudev Balwant Phadke. Yes. What happened? I think she is not able to listen me maybe. Hello. Prarthana. Okay, Kadambari. You can. Vasudev Balwant Phadke. If it is in Marathi, you can read Marathi. No problem. Okay. Vedant, Vishal, are you able to listen me? Vedant, you can read. Sir, from Vasudev Balwant Phadke, na? Yes. In Maharashtra, Vasudev Balwant Phadke gave an armed struggle against the British. He assumed that there should be armed struggle to fight against the British. He took the training of arms from Vasat Lakhuji Salve. He organized the Ramoshis and revolted against the British. The rebellion became unsuccessful. The British sent him to Eden jail. There he died in 1883. He built up an armed struggle for independence. Safekar brothers. In 1897, Vedant, very good. Very good you read. Okay. Next passage. Sir, can I read? Yes, Vishal. Why not? Vishal, yes, you can. Safekar brothers in 1897, the Blood Commissioner's land had restored to
training and force while managing the epidemic of plague in Pune. As a revenge, the Chaplikar brothers Damodar and Balkrishna shoot him dead on 22 June 1897. Damodar, Balkrishna and Vasudev, these three brothers and their associate Mahadev Rand were hanged to death. From the same house, three brothers accept martyrdom for the service of the country. During the same period, Munda tribe in Bihar, under the leadership of Birsa Munda, made great revolt Birsa against Munda. the government. Against the government. Okay, very good. Very good, Vishal. Vishal, Vedant, and who read? Yes, all of you good. Good reading, everyone. Any other? Can we read remaining students? Joyce, Kadambari, Nandini, can you read? Abhinav Bharat. Abhinav Bharat. In 1900, Yes, sir. Yes, Nandini, you can continue. After that, Kadambari. Yes. Vinayak Damodar Savarkar founded Mitra Mela, a sacred organization of revolutionaries in Nashik. The same organization was renamed as Abhinav Bharat in 1904. Savarkar went to England for higher education, from where he began sending revolutionary literature, guns, etc. to the members of Abhinav Bharat in India. He wrote in an inspiring biography of Joseph Mazzini, the famous Italian revolutionary. The 1897 rebellion was the first war of independence, was stated in the book The Indian War of Independence 1987, written by him. Okay, very good, Nandini. Reading. Now, next one, Kadambari. Only 5 minutes remain. Read now. Next point. Next passage. Sir, you can present screen. Marathi? You can read in Marathi, no problem. Okay. Marathi book is there. No? I can say in screen, no problem. Do you want to read English? Yes. Okay, no problem. Yes, this passage. The government came to know about the activities of Abhinav Bharat. Therefore, the government arrested Bharu Savarkar. He was sentenced to life. Baburao Savarkar. He has sentenced to life imprisonment as a revenge to this punishment. A Groth named Anant Lakshman Kanhere killed Jackson, the collector of Nashik. The government started arresting all these people who are connected with Abhinav Bharat organization. The murder of Jackson was linked with Swatantraveer Savarkar by the government. He has arrested and put under trial. The court ordered him rigorous punishment for 50 years. Okay, very good, all of you reading. Okay, so I think now you understood the lesson properly, everyone. Okay, yes. So we'll stop here only, but I will ask some questions and then we will stop this lecture. Okay. Swatantraveer Savarkar started a secret organization of revolutionaries named Daesh. The name of that organization, first name. Write your answer in chat box. Correct, very good. In Punjab, Daesh organized an uprising against government. Which person? The name of that person who started that uprising in Punjab. The name of that person who organized that uprising against the government.
In Punjab, the Dajash organized an uprising against the government. Ram Singh Kuka. Yes, correct answer. Very good. Dajash founded the India House. Who founded the India House? Who founded the India House? Who founded the India House? Krishna Verma. Huh? Pandit Shamji Krishna Verma. Yes. So, okay, students. Now, shall we stop here now? Shall we stop here? Have you understood the lesson? Yes. Okay. Thank you all of you. Have a nice evening to you also, everyone. Okay. Bye bye.